Hello friends, welcome to the Loka and IAS Academy. So today we are going to see the most important topic of the UPSC, which the people and the aspirant find difficulty in covering all these topics, like the how to read a newspaper. So before going to start our lecture, so let's see the quote of the day. That is, nearly all men can stand adversity, but if you want to taste a man's character, give him a power. The quote by the Abraham Lincoln sir. So what does it mean? That character of the person can be tested by giving power. And where we can link this quote? In the ethics paper, ethics, that is GS4, that is a human values. So your character ultimately defines your values, which defines your behavior. So this is a linking of a particular quote to the syllabus, and this is nothing but what? This quote is related with the philosophical topic which can come in the essay. Okay. So in this way you can link a particular topic to the different syllabus point. So this we are going to see in the today's session of how to read a newspaper. So before going to start our actual reading of the newspaper, let's first see the question is why newspaper is important. So what do you think? Why it is so much important for the UPSC? Why newspaper is so much important? Why everyone is talking about that? The first priority or first step, it is a first step to start your what? Preparation, that reading a newspaper. ये सबसे पहली स्टेप है ना. कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट उसको सिलेबस से पहले भी क्या बताया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है. ठीक है. तो व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट? क्या है ऐसा न्यूज़पेपर में इसको पहला स्टेप माना गया है? व्हाई? क्या हो सकता है? व्हाई? डे टू डे अपडेट्स, update of current events we can say, or the news. इसका क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंस है इसका यूपीएससी में? क्यों पढ़ना है ये तो पता चाहिए ना सबको कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है. ठीक है. न्यूज़पेपर पढ़ना ये पता है, कौन सा पता है ये भी पता है सबको, क्योंकि वो संदीप भैया एस्पिरेंट वाले उन्होंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो सारा हिंदुस्तान ने उसको उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया. लेकिन उसको पढ़ना क्यों है? उसी को क्यों पढ़ना है, दूसरे को क्यों नहीं पढ़ना है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना. ये किसने सोचा क्या पहले कि पढ़ना क्यों है न्यूज़पेपर इसको, और पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ही क्यों पढ़ना है? कोई उठा के क्यों नहीं पढ़ना है, और पर्टिकुलर न्यूज ही क्यों पढ़ना है? व्हाई? दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट whenever you are going to read anything, that you should ask question. This is the first step. Even before reading the newspaper, your first step should be the asking a question to anything, even any news, event, happening, syllabus, anything. Why this is important? Why this came in the present time? Why? How it is going to benefit? How it is going to utilize in the preparation? How it is going to utilize in the your answer writing? So these are the all WH questions. WH question, any other, that is a why, how, which, when, what, like, where, like this. You should ask this question to yourself while reading anything, any topic, any newspaper, any book, okay, anything from the your preparation. So why this is so much important? The most important thing in the newspaper, that is the current affairs or the topic. I am not saying the news because क्योंकि तुम जो पढ़ते हो न्यूज़पेपर में वो क्या है? सिर्फ एक करंट न्यूज है जो उस दिन हो गई है, अगले दिन
क्योंकि या तो फिर आगे होने वाली है, वो सिर्फ न्यूज है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्या? हमें यूपीएससी में न्यूज के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? वो न्यूज रिलेटेड टॉपिक। और ये टॉपिक कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? दिस इज फ्रॉम द सिलेबस। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है फिर सिलेबस का? इसके ऊपर क्या आने वाला है तुम्हारा? फर्स्ट क्वेश्चन। और कहां पे? बोथ प्रिलिमिनरी एंड द मेंस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? क्योंकि तुम्हारा कंप्लीटली जो पेपर है यूपीएससी का, फ्रॉम जीएस 1 to the GS 4, then most important is the essay and some optionals, not all one, some optionals like literature वगैरह में ज्यादा कुछ आता नहीं है, करंट अफेयर से आता नहीं होगा क्योंकि मेरा नहीं है, but optionals like PSIR, PubAd, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से जो ऑप्शनल है, ठीक है, वहां पे करंट का रिलेवेंस हाईएस्ट है, ठीक है। सेकंड पेपर तो पूरा डायनामिक है, दैट्स व्हाई। तो ये सारी चीजें कहां से आने वाली है तुम्हारे? ठीक है, फ्रॉम द जो न्यूज़पेपर में चल रहा रिलेटेड टॉपिक है, न्यूज नहीं, न्यूज रिलेटेड जो टॉपिक है, तो वहां से ये सब कुछ आने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डिबेट चल रहा है सीए एनआरसी, अभी डिबेट चल रहा है यूसीसी के ऊपर, अभी डिबेट चल रहा है गवर्नर के पोस्ट के ऊपर, अभी डिबेट चल रहा है फ्रॉम द इकोनॉमी इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है। अभी डिबेट चल रहा है मॉनसून, तो मॉनसून के ऊपर, अभी रिसेंटली हैपन हुआ जो डिजास्टर के ऊपर। ये सारे क्या है? टॉपिक्स है। करंट न्यूज में क्या आया था? कहां पे डिजास्टर हुआ अभी रिसेंटली, वो न्यूज में आया था, कौन सा हुआ, साइक्लोन हुआ या फिर सुनामी आया या अर्थक्वेक हुआ, ये सारे न्यूज में, ये भी अभी क्या है? न्यूज में है, ठीक है। लेकिन इसका सिलेबस लिंकेजेस क्या है, ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाई टू रीड, ठीक है। सो व्हाई टू रीड? फॉर प्रिपरेशन, एंड प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? बोथ प्री एंड द मेंस, ठीक है। ये दो हो गया, लेकिन क्या इसके यहां यही तक ये सीमित है, प्री एंड द मेंस? इससे ज्यादा हाईएस्ट इंपॉर्टेंस क्या है? और दैट इज अ इंटरव्यू। कंप्लीटली इंटरव्यू इज योर थॉट बेस्ड। वहां पे तुमको लिखना नहीं है, थॉट है, और तुम्हारे पास सोचने के लिए कितना टाइम है? हार्डली 5 सेकंड 10 सेकंड, उसके ऊपर नहीं। और बाद में तुम्हारे दिमाग में जो भी आने वाला है ख्याल, वो तुमको क्या करना है? बताना है, ठीक है। सो इंटरव्यू, और इंटरव्यू मोस्टली किस चीज पे ऊपर रहता है? ठीक है, बाकी तो तुम्हारा डैफ वगैरह ये हो गया, लेकिन डैफ और तुम्हारे कुछ हॉबी या फिर तुम्हारा एक्सपर्टीज एरिया, जैसे किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो और कंप्यूटर आईटी हो, तो उसको क्या टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। और कौन सा टेक्नोलॉजी? इट इज द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो भी करंट में था, करंट न्यूज में, जिसके ऊपर G20 वगैरह ये सारे लोग बात कर रहे हैं, तो G20 भी न्यूज में है, ठीक है। दैट मीन्स इंटरव्यू, the most common question of the interview from the IR perspective, because it is overlapping in the GS syllabus, GS paper 2, ठीक है। IR, that is a in the last 2 years they asked question about the Afghanistan, almost every candidate, what should be the India's stand on the Afghanistan issues, that was a question in the interview. That means it is relevant in the every preparation, ठीक है। और क्या यही तक सीमित है? Is it limited with the this only preparation of the pre, mains and the interview? और कहाँ लगेगा? हाँ, definitely. So you want to become a administrator, और administrator का most important काम क्या है? Most important work क्या करना है तुमको जाके वहां पे? After getting up any post, after becoming an administrator, ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू आर गोइंग टू डू? क्यों तुमको सिलेक्ट किया जाने वाला है? क्या करने क्या वाले हो तुम वहां जाके? ऐसे तुमको क्यों सिलेक्ट किया जाएगा? क्यों बनना है एडमिनिस्ट्रेटर? और न्यूज़पेपर में क्या आता है? दैट इज अ
न्यूज़पेपर में क्या आएगा? डेली, डेली के इश्यूज, कि क्या इश्यूज चल रहे हैं अभी करंट इसमें, ठीक है, प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स फ्रॉम एवरीवन एस्पेक्ट, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देन द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा काम क्या है? इस प्रॉब्लम को क्या चाहिए तुमको? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कब आएगा? जब तुमको ये सारे प्रॉब्लम्स पता होगे तब। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टू फाइंड अ सॉल्यूशन। सो न्यूज़पेपर पढ़ना किस हिसाब से? फ्रॉम विच एंगल? सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंगल। न्यूज़पेपर उस चीज के लिए पढ़ना है कि चाय पे चले गए, चाय पे चर्चा, ठीक है, अभी महाराष्ट्र में क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुआ, किसने क्या क्या, किसने वोट ली नहीं ली, ठीक है, कितने वो बम मारे इधर उधर सीरिया वीरिया में, या फिर अफगानिस्तान में क्या हुआ, ठीक है। तो ये चाय पे चर्चा के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या सबको? नहीं। क्या डिफरेंस है? ये तो हो गया इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन पीपल, क्या डिफरेंस है? एक एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट, यूपीएससी का हो, एमपीएससी का हो, एनी स्टेट सर्विस, एमपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस, ठीक है, एंड जनरल पब्लिक। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इनको क्या करना है? सिर्फ अपना ओपिनियन देना है, और इनके पास हर एक चीज के लिए ओपिनियन रहेगा, हर एक चीज के लिए, उसके बारे में पता हो या ना पता हो। और वो ओपिनियन कौन से बेसिस पे रहेगा? न्यूज के बेसिस पे, जो आज हुआ उसके बेसिस पे, और जो उनको उसके बारे में लगा सिर्फ उसके बेसिस पे, ठीक है। और ये कौन करेगा? जनरल पब्लिक। यानी तुमको क्या घर पे डिबेट थोड़ी करना है अपनी मम्मी पापा के साथ कि न्यूज में क्या चल रहा है, इसके लिए थोड़ी। या फिर ट्रेन में जा रहे हो तुम, बस में जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, चाय पे जा रहे हो, इस डिबेट के लिए तुमको करना है क्या? दिस इज डिबेट। इनके लिए ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और तुम्हारा काम क्या है एज अ एस्पायरेंट? सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिविटी। और ये ऑब्जेक्टिविटी कहां पे मेंशन है? GS4। GS4 का हेडिंग देखा क्या तुमने ऊपर का? GS4 का जब सिलेबस शुरू होता है उसके ऊपर कुछ हेडिंग है, देखा तुमने? So why it is so much important, and it is given in the syllabus of the UPSC, especially the GS4, where they are talking about this paper, that is GS4. This paper will include questions to test the candidate's attitude and approach. This attitude and approach both are the things which can develop from your daily newspaper, daily news analysis, ठीक है। And for what purpose this attitude and approach? To issues which you are going to read in the newspaper relating to integrity, probity in personal life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him, ठीक है। So that means this paper is talking about the your problem solving ability, this problem solving ability. So this problem solving ability will definitely generate from the analysis, your opinion which can be formed based on the daily newspaper reading with some what? Objectivity, with some objectivity. So this is the main and the major importance of the newspaper reading in the UPSC, ठीक है, समझा? So next important question which students find a difficulty is which newspaper should we read?
कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? पहले तो पढ़ना क्यों चाहिए हो गया कि व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, थ्रू आउट द सिलेबस एंड द पर्सनल लाइफ। अभी पढ़ना कौन सा है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए जनरली? संदीप भैया कौन सा बताते हैं, कौन सा पढ़ना है? द हिंदू। संदीप भैया ने बता दिया द हिंदू, पूरा भारत द हिंदू लेके चला गया, ठीक है। कितने लोगों को ये पहली बार पढ़ने के बाद समझता है द हिंदू? इसके वर्ड्स भी पढ़े जाते हैं क्या शुरुआत में? तो बहुत से, तो जैसे मेरे जैसे बच्चे थोड़ा मराठी बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, मदर टंग वाला वही सारा कुछ, तो इंग्लिश तो इतना पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। तो द हिंदू उठाने के बाद तो ये तो ऐसा लगता है कि कोई बाइबल बिल्बल पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर भगवत गीता। जितना डिफिकल्ट ये समझ में है, गीता बीता, भगवत गीता, ठीक है, GEET या GIT जो भी लिखते हैं, ठीक है, जितना डिफिकल्ट ये समझने में, वैसे तो ये हिंदू लगता है द हिंदू शुरुआत में। जिनका ठीक है थोड़ा सा प्रिपरेशन हो तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो द हिंदू का तो लेवल वही है। और पढ़ने के लिए द हिंदू अगर पढ़ने बैठ गए तो मुझे तो पहली बार 6-7 घंटे लग गए थे, दिन भर वही की काम किया मैंने, सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ा, क्योंकि पहले तो लैंग्वेज नहीं खत्म। तो उसके साथ क्या, द हिंदू के साथ क्या लेके बैठा था मैं? डिक्शनरी। भाई इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मीनिंग पढ़ो पहले, तो बाद में फिर पता चलता है मीनिंग होने के बाद कि आर्टिकल में कहा क्या है उसने, उस लाइन का मीनिंग पता चलता है। सो दिस इज द हिंदू एंड एवरी एस्पायरेंट कहा जाता है पहले द हिंदू लेने, खरीदने वही जाता है, ठीक है। पहला दिन प्रिपरेशन का स्टार्ट होता है उसका द हिंदू खरीदने से, जोरों शोरों से, ठीक है। द हिंदू खरीद लिया और लगा लिया, द हिंदू पढ़ लिया, समझा क्या? कुछ नहीं, ठीक है। 2 महीने 3 महीने द हिंदू पढ़ लिया, समझा क्या? कुछ भी नहीं सिर्फ। लेकिन द हिंदू तो रोज पढ़ना है, क्योंकि संदीप भैया ने बताया। तो पढ़ना का क्या है फिर, कौन सा पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर बेटर है पढ़ने के लिए? तुमने वो छोटे बच्चों को देखा होगा ना, छोटे बच्चों को अगर गियर की गाड़ी अगर सिखानी हो तो क्या डायरेक्टली गियर की गाड़ी उसके हाथ में देते हैं क्या अपन? पहले तो ट्राईसाइकिल आती है, ठीक है, उसके बाद वो चार चक्के वाली साइकिल जिसको 2 साइड में लगे होते हैं, उसके बाद वो 2 चक्के निकाला जाता है, बाद में वो बैलेंसिंग सीखता है, बैलेंसिंग के बाद वो क्या करता है, मोपेड सीखता है विदाउट गियर वाली गाड़ी, उसके बाद में फिर गियर का लाइसेंस, और उसके बाद में 4 व्हीलर। तुम चले 4 व्हीलर सीखने डायरेक्टली, सही है ना। और सिर्फ द हिंदू पढ़ने से होगा क्या? अभी का सिलेबस, अभी के तो क्वेश्चन पेपर ऐसे आ रहे हो कौन से भी न्यूज़पेपर से, मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लोकल न्यूज़पेपर, कहीं से भी, किटकैट बिटकैट के ऊपर से क्वेश्चन। 2 साल तो किटकैट के ऊपर से क्वेश्चन आया कल्चर में, ठीक है। अभी किटकैट पढ़ते बैठते, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो फिर एक स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट, कि स्टार्ट कौन से न्यूज़पेपर से करना है और करना क्या है स्टार्ट। सो फर्स्ट डेफिनेटली यू विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। जैसे यूपीएससी का पूरा प्रिपरेशन स्टार्टिंग से तुम क्या लक्ष्मीकांत, फिर वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या फिर वो डीके बालाजी, और फिर रेक्सिकान वाली वो GS4 के लिए किताब, या फिर ऑप्शनल का जैसे मेरा PSI है तो फिर OP गौबा, लेटर टू मार्क्स, ये सारी किताबें थोड़ी ना। सबसे पहले क्या, यूपीएससी का बेस्ट प्रिपरेशन इज NCERT, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर न्यूज़पेपर भी सिलेक्ट करो ना, पहले बेसिक वाला थोड़ा इजी, ताकि तुमको समझे कि क्या आ रहा है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो बेसिक के हिसाब से शुरू करो, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिनका लैंग्वेज थोड़ा सा इजी होता है, समझने में इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा प्रिपरेशन उसी से करना है, ठीक है। सो टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करो, जो फिर नहीं तो फिर बाइलिंगुअल जो न्यूज़पेपर आते हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस और लोकसत्ता महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा सिमिलर न्यूज रहता है, तो वो तुमको समझ आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से शुरू करो। उसके बाद में थोड़ा सा तुमको डिफिकल्टी ऐसा लगे तुम्हारा कि नहीं थोड़ा सा अभी प्रिपरेशन हुआ है, ठीक है, तो प्रिपरेशन के बाद कहां पे जाओ फिर? इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इनका भी लैंग्वेज थोड़ा सा द हिंदू के कंपैरिजन में मुझे इजी लगता है, ठीक है। और तुम्हारा प्रिपरेशन अभी ठीक है, तुमको समझ रहा है, तुम्हारी आदत होगी है तुमको पढ़ने की, कुछ वर्ड्स तुमको भी पता है, गवर्नेंस के, सोसाइटी के, सोशल जस्टिस के, जुडिशियल वगैरह, ये सारी चीजें कुछ क्योंकि यहाँ पे तो आर्टिकल भी आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर तुम खुद को अपग्रेड करो। हमारी जम डायरेक्टली यहाँ पे रहती है और ये होता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी बेसिक न्यूज़पेपर जो तुमको समझा, ठीक है, तुमको पता चले क्या चल रहा है, तुमको समझ सके, वैसा न्यूज़पेपर उठाओ, डायरेक्टली द हिंदू मत उठाओ। और तुम्हारा अगर प्रिपरेशन है
तुमको पता है कि द हिंदू तुमको समझ रहा है तो ही फिर द हिंदू के पास जाओ, लेकिन तुमको द हिंदू पे जाना ही है, आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। मैं सिर्फ द हिंदू के बारे में नहीं बात कर रहा, दोनों, दो में से कोई भी उठा सकते हो, आइदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों सिमिलर ही है। ये थोड़ा सा इजी है, ये PSR वगैरह ये करंट अफेयर्स जिसमें ज्यादा आता है, ठीक है, जो ऑप्शनल में उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह ज्यादा रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस, जैसे वो एक्सप्लेन का पेज वो बहुत सही रहता है वहाँ पे, ठीक है। बाद में फिर एडिटोरियल भी ज्यादा रहते हैं, उनका द वर्ल्ड का पेज अच्छा रहता है, ठीक है। तो ऐसे, और द हिंदू तो फिर है ही। तो दो ऐसा एक न्यूज़पेपर इस तरीके से उठाओ, एकदम से मत उठाओ कोई भी न्यूज़पेपर और उठाने के बाद पढ़ना शुरू, ऐसे नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत नहीं, कोई भी एक उठाओ, एक पूरा पढ़ो अगर तुम्हारे पास टाइम हो, ठीक है, टाइम परमिट कर रहा हो, तुम्हारा प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, तो फिर अगर तुमने एक्सप्रेस पढ़ा तो सिर्फ द हिंदू के तुमको एडिटोरियल पढ़ना है, जो भी अलग आएगा वो, सिमिलर नहीं, अलग जो आएगा वो, ठीक है। और फिर अगर तुम्हारे पास, तुम हिंदू पढ़ रहे हो और टाइम है तो फिर एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है, दो में से एक, लेकिन एक तो तुमको फिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और शुरुआत में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? कितना टाइम इनिशियली कितना टाइम लगता है? अगर मैंने न्यूज़पेपर शुरुआत कर दिया पढ़ने के लिए तो कितना टाइम इनिशियली लगना चाहिए, कितना लगता है? 3 घंटे नॉर्मल है, 3 आवर इज अ नॉर्मल, क्योंकि ये लगता है। और ये क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, स्टैटिक और करंट। ये तुमको पता ही चाहिए, ये क्योंकि इंटर रिलेटेड है। ये स्टैटिक तुम्हारा सिलेबस है पूरा जो तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तुमको अगर स्टैटिक पता हो तो तुमको करंट समझेगा, सही है ना। और अगर तुमको करंट पता होगा तो ही तुम स्टैटिक के साथ लिंक कर सकते हो, और जब इन दोनों का सिंथेसिस होगा तो तुमको मार्क्स ज्यादा आएंगे। दिस इज अ मार्क्स बूस्टर। और शुरुआत की प्रिपरेशन में क्या होता है, जैसे अपन द हिंदू पे बात कर रहे हैं, वहां पे करंट न्यूज है और इसको तो तुमको पता ही नहीं है क्योंकि अभी एनसीईआरटी खत्म होने की है, ठीक है। सिर्फ ये पता है करंट, और फिर ये समझता नहीं है क्योंकि स्टैटिक कुछ भी नहीं है। जैसे आज का पेपर अपन लेने वाले हैं, यहाँ पे एससीओ के बारे में बात की है आज के पेपर में, या फिर नेटो प्लस के बारे में बात की है, ठीक है। एससीओ किसको पता है? ऐसे समझो आज हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, द हिंदू उठा लिया 4 जुलाई का जो अपन बाद में लेने वाले हैं। एससीओ किसी को पता नहीं, कब आया था, क्यों फॉर्म किया था, कितने लोग थे, शुरुआत में सच में एससीओ होता है या अदर कोई दूसरा नाम था, नेटो क्या है, नेटो के बाद में नेटो प्लस क्यों आया, और इंडिया अभी क्यों ज्वाइन करने वाला है, और करना है नहीं करना है, करने वाला नहीं है, करना कि नहीं करना, क्यों अपोज कर रहा है इंडिया ज्वाइन करने, ये सब कुछ कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम द स्टैटिक, सही है ना। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी आज के न्यूज़पेपर में? एससीओ एंड द नेटो, ये पता ही नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं अपन। तो अपन पढ़ेंगे तो ठीक है, महीना भर 2 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद मैक्सिमम पढ़ेंगे, लेकिन समझेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये हुआ क्यों था, फिर टाइम वेस्टेज। तो शुरुआत में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा स्टैटिक नहीं है, वो फियर फैक्टर नहीं बता देना कि हमें 3 घंटा लग रहा है, नहीं तो फिर वो बहुत सारे पंडित शुरू हो जाते हैं फिर यूट्यूब पे, ठीक है। तुम्हारा न्यूज़पेपर 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, अगर तुम उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे होगा ही ना, समझने के लिए थोड़ा टाइम तो दो, ठीक है ना। तो 3 आवर इज द, ठीक है, इनिशियल स्टेज 3 आवर इज द सफिशिएंट। ऐसा मत करो कि 6 आवर लगा दो, पूरा दिन तुमको पंडित नहीं बनना है, ठीक है। तो 3 आवर इज द सफिशिएंट वन, उसको रिड्यूस करना है। तो कितना करना है रिड्यूस फ्रॉम द 3 आवर, कितना होना चाहिए एवरेज? एवरेज कितना टाइम लगता है? 1 एंड 1 और 1.5 आवर, इतना टाइम एवरेज लेते हैं सब लोग, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने में एक। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम किस हिसाब से पढ़ रहे हो। जैसे मुझे आज भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बीच में मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर मुझे टॉपिक मिल गया, जैसे अपन अभी यूसीसी के बारे में बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो फिर मैं ये टॉपिक पूरा उसी टाइम पढ़ लेता हूँ, उसका सर्च करता हूँ, ठीक है, और उसी टाइम फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या है, कोई न्यूज़ है क्या पहले आई हुई, किसी स्टेट ने किया है क्या, इंटरनेशनल में क्या क्या है, ठीक है, या फिर अपने आप ही उसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें वहीं पे करता हूँ मैं, ऐसे मुझे लगा कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन बाद में पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है।
तो इसलिए फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सिर्फ अगर तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो उसके लिए इतना टाइम अलोकेट करना फिर ठीक है वो जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि बाकी पोर्शन बच जाएगा। सो ऑलमोस्ट 1 to 1.1.5 hour you should allocate for the reading of the newspaper